Find out sales from the following data. Particulars value as given to you. NBFC 300, intermediate consumption 200, indirect tax 20, depreciation 30, and change in stock minus 50. So what we have to find out? We have to find out sales from the given particulars. So the formula value added equal to value of output minus intermediate consumption. Value is given to NBFC. From NBFC we have to find out value added or GBM. Then what we have to do? NBFC to GBM. So from net to gross what we have to do? Plus depreciation net to gross. BA cancel out हो गया. Factor cost to market price plus NIT. NBFC value which is 300 plus depreciation value is given to you which is 30 plus NIT value only indirect taxes are given to you. Indirect tax which is 20. No subsidy is given to you. Only indirect tax value is given to you. Indirect tax means indirect tax value which is 20 minus 0. Then 300 plus 30 plus 20. So 300 plus 50 equal to 350. 350. It is the value of GBNP. It is the value of GBNP. So you have to put here value added में put करना है 350 equal to value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption. So 300 intermediate consumption का value डायरेक्ट put कर देंगे. दिया हुआ है हमें 200 का intermediate consumption का value 200. So 200. Then 350 plus 200 equal to value of output. 550 equal to value of output. अब लोग सर सेल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्यों कैलकुलेट किए? वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम इसीलिए कैलकुलेट किए क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के बाद हमें सेल्स का वैल्यू मिलेगा. सो हियर द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 550 एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट वी कैन कैलकुलेट सेल्स. जस्ट सी यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू 550. वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस सेल्स plus change in stock equal to 550. So sales value has not given, we have to find out sales plus change in stock which is minus 50. So plus minus 50 equal to 550. So sales minus 50 equal to 550. Sales equal to 550 plus 50. Sales equal to 600. Sales equal to 600. So here the value of sales is 600. Easily we can calculate the value of sales, but first of all we have to calculate the value of output. No need to confusion over there. Sales plus change in stock डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करके नहीं करना है. बस वैल्यू ऑफ आउटपुट को फाइंड आउट कर दो, कैलकुलेट कर दो, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को अप्लाई करके सेल्स का वैल्यू को निकाल सकते हैं. सो इन दिस प्रोसेस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स. अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? NBFC we have to find out. What is the value of NBFC? NBFC net value added at factor cost. So first of all we have to calculate gross value added at market price. After that we can calculate net value added at factor cost from GBNP or gross value added at market price. ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो हम आसानी से कर सकते हैं. बस वही ट्रिक अप्लाई करो, फॉर्मूला में क्या चाहता है और पर्टिकुलर्स में कौन सा चीज लेना है कौन सा चीज नहीं लेना है, ये चीज को ध्यान से देना है. क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बहुत सारा पर्टिकुलर्स दे देता है. जो चीज चाहिए होता है वही चीज को हमें
लेना है, जो चीज नहीं होता है हम उसे स्किप कर देना है, सिंपल बात है। सो एनबीएफसी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रॉस वैल्यू मार्केट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, जीबीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देते हैं, इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स हमारे पास है, चेंज इन स्टॉक भी पहले और एक लाइन कर देता हूं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स का वैल्यू गिवन है, सेल्स का वैल्यू कितना है हमारा 140, सेल्स इज 140 प्लस चेंज इन स्टॉक देखो हमारे पास -10, सो प्लस -10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट व्हिच इज 90, सो -90, सो 140 -10 -90 हो गया हमारा -100 इक्वल टू 40 हमें क्या मिला, वैल्यू एडेड की जीपीएमपी मिल गया, GPAMP equal to 40. So what we have to do? GPAMP to we have to NBAFC. BA cancel हो गया. Gross to net means what we have to do? Minus depreciation. Market price to factor cost minus NIP. Clear? So GPAMP वैल्यू हमें कितना मिला? 40 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, डेप्रिसिएशन है 20 माइनस एनआईपी चेंज इन स्टॉक, एनआईपी में इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं दिया हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू डू, अब वो लोग ऐसा इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दिया हुआ है, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, तो इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल को भी तो हम ले सकते हैं, क्योंकि इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल वो भी तो एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो हम इसको क्यों नहीं लेंगे, ये वैल्यू को क्यों नहीं लेना है। सोचो जरा, इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर हम लेते हैं तो इनपुट ऑफ एनी प्रोडक्ट विल नॉट टेक इन द कैलकुलेशन, बिकॉज इन इंटरमीडिएट कॉस्ट द वैल्यू ऑफ एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल or purchase of milk by the sweet shop or any type of intermediate product, we have no need to take that, because if intermediate cost is there, then it is already calculated with this. So -20 minus indirect tax का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन पे, there is no value of indirect tax, only subsidy is there. So indirect tax means -0 minus subsidy का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, subsidy equal to 5, so 5 कर दिए, so 40 minus 20 minus 0 छोड़ दो plus 5 plus minus minus plus हो गया plus 5, so 40 minus ये हो गया हमारा कितना 15 25, हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 25, so 25 जो वैल्यू हमें मिला क्या मिला, वो हो गया हमारा एनबीए। So NBFC will be value will be 25 answer. Net value added and factor cost answer is 25. So with this process we can calculate the NBFC of the given particulars. अभी next problem करते हैं. The next question, find out net value added and factor cost from the following data. Same question है, previous question के तरह, but particulars कुछ different है. Particulars में जो value है वही value को लेकर हमें calculate करना है। एनबीएफसी का वैल्यू क्या है हमें वो फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस में करेंगे, पहले हम वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे, इक्वल टू हम यहाँ पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो रहा है। सेल्स का वैल्यू क्या हो रहा है हमें क्वेश्चन पे कितना है 500 प्लस चेंज इन स्टॉक का वैल्यू ऑलरेडी है क्वेश्चन में -20 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो वैल्यू है नहीं है, पर ध्यान से देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मींस इट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सो वैल्यू है 250, सो -250 500 माइनस 270 हो गए, प्लस माइनस माइनस हो गया, -20 -250 -270, ये कितना हो जाएगा हमारा
230 हो गया हमारा 230, 270 30 हो गया हमारा 300 200 500, 230 जो मिला हमें क्या मिला, वैल्यू क्या मिला हमें जीबीएमपी। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, एनबीएफसी। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे फ्रॉम जीबीएमपी टू एनबीएफसी। ये कैंसिल कर दिए, फ्रॉम ग्रॉस टू नेट व्हाट यू हैव टू डू, माइनस डेप्रिसिएशन मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। जीबीएमपी वैल्यू कितना मिला हमें 230 माइनस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑलवेज नोन एज डेप्रिसिएशन व्हिच इज 40, so minus 40 minus 90। indirect tax यहाँ पे भी नहीं है, only subsidy value is given to you, no value of indirect tax is there, so minus 0 minus 30, so 230 minus 40 minus 0 हटा दो, minus 30 हो गया plus 30, so 230 minus 10 equal to 220। वैल्यू क्या आ गया हमारा 220 is the value of NBAFC. So in this process we can calculate the net value added at factor cost. So NBAFC will be 220. From the following particulars, first of all we have to calculate value added which is known as GBMP, and from GBMP we have to find out NBAFC by following these steps or this formula. We can find out the process of NBAFC which is 220. राइट नाउ 220 इज द आंसर। और एक क्लास प्रॉब्लम में करेंगे और वैल्यू एडिट का जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है हम सारा प्रॉब्लम कर लिए, वो प्रॉब्लम को अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो बाद में क्वेश्चन रेज करना, वो चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर किसी को वैल्यू एडिट का कुछ अलग प्रॉब्लम मिल रहा है तो जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, वो ग्रुप पे सेंड करो, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। वैल्यू एडिट का जितने भी प्रॉब्लम थे आसपास हम सारा प्रॉब्लम कर लिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला डिफरेंट होगा, प्रोसेस डिफरेंट होगा, और एक प्रॉब्लम करके हम वैल्यू एडिट का जो कैलकुलेशन का वैल्यू एडिट प्रोसेस का जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन उसको हम एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। So, here the next question, and it is the last question, which is find out net value added at factor cost from the following data. So, particulars I was given to you: sales, purchase of raw materials from domestic market, value 400, sales 800, import of raw material 100, subsidy 30, consumption of fixed capital 40, change in stock 50, and rate 70. What we have to find out? We have to find out same question NBAFC. We have to find out NBAFC. What is the value of NBAFC? That thing we have to find out. So first of all, we have to calculate value added. Value added formula, it is value of output minus intermediate consumption. Value of output means it is sales plus change in stock minus intermediate consumption. Sales plus change in stock minus intermediate consumption. Sales value has already given to you, which is 800 plus change in stock. Change in stock which value is 50. The change in stock value it is 50. So we can mention over here change in stock means 50 minus intermediate consumption. What we have to do right now? Intermediate consumption, मैंने तुम लोगों को बोला था कि अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पे है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ले जाना। क्लियर? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू क्वेश्चन पे तुम्हें दिखाई देता है और उसके बाद उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है या परचेज ऑफ एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उसको स्किप करना है, नहीं लेना है। इंटरमीडिएट गुड अगर क्वेश्चन पे डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसी वैल्यू को ले जाना, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या एनी परचेज ऑफ एनी इंटरमीडिएट गुड अगर क्वेश्चन पे है हमें नहीं लेना है, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट पे वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया। पर अगर क्वेश्चन पे इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है, परचेज ऑफ एनी गुड दिया हुआ है, वही वैल्यू को लेना है। और भी मैंने एक बात बताया था, जैसे कि सेल्स का वैल्यू अगर क्वेश्चन पे नहीं होगा, ध्यान से सुनो, अगर सेल्स का वैल्यू क्वेश्चन पे नहीं होगा, डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है
और एक्सपोर्ट दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, सेल नहीं है क्वेश्चन पे, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, ये चीज मैंने बार बार बोल रहा हूँ, याद रखो। सेल नहीं है तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल के साथ एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, हमें सेल मिल जाएगा। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं है, तो उसमें क्या होगा, एनी डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट भी दिया जाएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या आएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन में एनी डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। सेल में क्या लिया जाएगा, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं, समझ में आएगा। हमारा सेल में, सेल कैसे मिलेगा हमें, सेल्स इक्वल टू डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, क्लियर, ये दोनों चीज को ध्यान रखना है। तो चेंजेस सब लेंगे माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन है, क्वेश्चन पे इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक परचेज हुआ कि नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इसका मतलब डोमेस्टिक परचेज हो गया। डोमेस्टिक परचेज का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो वैल्यू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट व्हिच इज 400, हम यहाँ पे लिखे माइनस है तो ब्रैकेट में रखेंगे 400, और इंपोर्ट भी दिया हुआ, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा हूं, इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट मींस इट इज डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कितना क्या है वैल्यू 100, तो यहां पे हमने लिखा है, क्लियर। सो क्या करेंगे हम, 800 प्लस 50 माइनस 400, हम यहाँ पे क्या करना है, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन का वैल्यू है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट इट इज 400 प्लस, यहाँ पे प्लस क्या है, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 100, ब्रैकेट में रखिए माइनस प्लस 100 करके, माइनस 100 प्लस 100, क्लियर। सो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 400 माइनस 100 हो गया, ब्रैकेट को हटा दिए, सो 800 प्लस 50 माइनस 500, 800 ये कितना हो जाएगा, माइनस 500, माइनस 550 प्लस 50 इक्वल टू माइनस 500 हो गया, यानी कि हमारा वैल्यू मिल गया क्या, 300, क्या वैल्यू मिला, जीपीएमपी का वैल्यू मिला, ठीक है। So here again check it out, minus 400 plus 100, minus 400 minus 100 हो गया, so it is minus 500, 800 plus 50 minus 500, 800 minus 450 हो गया, minus 500 plus 50 equal to minus 450, so क्या हो जाएगा, 800 minus 450 equal to 350, हमें क्या मिला वैल्यू, जीपीएमपी का वैल्यू मिल गया, जीपीएमपी का वैल्यू मिल गया। हम अब क्या करेंगे, एनबीएफसी में फाइंड आउट करना है, सो जीबीएमपी2 हमें जाना है एनबीएफसी पे, बीएबीए कैंसिल हो गया, ग्रॉस को नहीं जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी करेंगे, क्लियर। सो जीबीएमपी का वैल्यू कितना है, हमें वैल्यू मिला 350, 350 माइनस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है इतना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वैल्यू को देख लेते हैं, सब्सिडी का वैल्यू, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40, चेंजेस ऑफ 50, रेंट का हमारा 70, सो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन कितना है 40 माइनस 40 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन पे नहीं है, ओनली सब्सिडी दिया हुआ है, देयर इज नो इनडायरेक्ट टैक्स, सो माइनस 0 माइनस सब्सिडी का वैल्यू कितना है 30, सो 350 minus
40 माइनस 0 हटा दो तो हो गया +30, 350 माइनस 10 इक्वल टू 340 इज द आंसर। 340 इज द आंसर। जो वैल्यू में 340 मिला है क्या है, कौन सा वैल्यू मिल गया जो 340 मिला हमें, NVAFC equal to 340 is the answer. In this process we can calculate all the numerical problem. Whatever question you ask to calculate, you can easily calculate. Just we have to remember the formula. We have to clearly check all the particulars, that which value you have to take, which value not. Similarly, just look at here, rate value is given to 70. No need to calculate rate. Rate value अगर दिया भी हुआ है स्किप कर देना है, वैल्यूएटेड में प्रॉफिट दिया हुआ है स्किप कर देना है, वैल्यूएटेड में हमें इंटरेस्ट का वैल्यू दे दिया हुआ है स्किप करना है, जो वैल्यू हमें नहीं चाहिए होता है वो कंफ्यूजन के लिए दिया होता है वो वैल्यू को बस हमें स्किप करना है, वो चीज को ध्यान रखना है। पर्टिकुलर्स को ठीक से देखो, फॉर्मूला को याद करो, कौन सा वैल्यू हमें चाहिए और कैसे कैलकुलेट करना है, इजीली वी कैन कैलकुलेट। मेरा पहला जो वीडियो बनाया था मैंने वो सारा वीडियो को देखो, फिर बाद में कैलकुलेशन टॉपिक में आप समझ सकते हो। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस जो पार्ट वीडियो मैंने बनाया था फर्स्ट स्टेप में जो सेकेंड चैप्टर में था GDPMP, NDPFC, NNPMP, NNPFC कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रोसेस में पहले जाओ और ठीक से समझो तो बाद में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये लास्ट वीडियो है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इवैल्यूएट का जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पॉसिबल हुआ मैंने सब कर बता दिया। आई होप कि इवैल्यूएट का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तुम लोग आसानी से कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो देखो, इसको समझो, डाउट होता है तो पूछो, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड पे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।